So students, today we are going to discuss the topic capacitance of parallel. What is the topic? Capacitance of parallel plate capacitor. It means if you have a capacitor in the form of parallel plates, a capacitor consists of always two conductor. The two conductor are in the form of parallel plates. Okay. So how can we calculate the capacitance of that parallel plate capacitor? So first of all, we will study the figure of that parallel plate capacitor. This is a parallel plate capacitor. Two plates must be there. One is A, second plate is B. So we have two plates. I think ये visible नहीं है आपको. This is A and this is B. So we have two plates. Both the plates are charged now equal and opposite. If one plate is positive charge, another plate is having negative charge in equal and opposite. Magnitude लेकिन sign जो charge का magnitude जो Q है. So what is the distance between the two plates? The distance between the two plates is D. Distance between the plates is D. So what we have to calculate? We have to calculate the capacitance of parallel plate capacitor. So what will be the capacitance? The formula for capacitance. The formula for capacitance. Formula for the capacitance is C equals Q upon V. Okay. Q is charge. What is V? V is potential. Q is E is potential. So we have the charge. Magnitude of charge. Magnitude of charge on both plates. दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज Q. वो मैग्नीट्यूड कितना अपने पास Q है. So we have the magnitude, but we have to calculate the potential. How can we calculate the potential? For potential, first of all, we have to calculate the electric field. There was a topic relation between electric field and electric potential. Relation between electric field and electric potential. So relation between electric field and electric potential is V equals ED. It means if we are known with the electric field between the plates. अगर हमें दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डिस्टेंस हमें पता ही है, देन वी कैन कैलकुलेट इन बिटवीन द प्लेट्स कि प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल लग रहा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड as we have discussed in
So we were discussing electric field between the two plates is sigma upon epsilon naught. Due to the Gauss theorem से हमने किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो प्लेट्स के बीच में दैट इज अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो पोटेंशियल इज ई की वैल्यू यहां पुट कर दी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, पोटेंशियल आ गया. बट व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो सिग्मा क्यू बाय चार्ज बाय एरिया, सिग्मा की वैल्यू यहां पुट कर दी हमने, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए इनटू डी बाय में एप्सिलॉन नॉट. So this is the potential. Now what we have the potential, so we have to calculate the capacitance. So capacitance is Q by V. Q as it is, what is the value of V? V is air, Q D by में A epsilon naught. Q D जो न्यूमरेटर में था वो वहीं रहेगा, जो डिनोमिनेटर में A epsilon naught था वो चला गया इसमें ऊपर, तो Q से Q क्या हुआ? कैंसल. So what is now? So capacitance is A epsilon naught upon D. So capacitance of parallel plate capacitor when air is in between them, air or vacuum, when air or vacuum is there in between the plates, then the capacitance of the, इसको हम C naught से लिखेंगे. C naughts mean not representing air, means actual there is air or vacuum in between the plates. So अगर दोनों plates के बीच में parallel plate capacitor है with air in between the plates, so capacitance will be A epsilon naught upon D. What is A? A is area of the plates. ये जो plates हैं इसका area है, इसको चलो कुछ और नेम दे देना, ये N और M बन गया, ये A है, इसका एरिया, इसका भी एरिया A है. What is A? A is area of each plate. What is A? That is area of each plate. Each plate का जो एरिया है वो हमारे पास ये बना है, that is A. So how can we calculate the capacitance of a parallel plate capacitor when there is air in between them? When there is air in between them, the formula is A epsilon naught upon D. A is area of the plate, epsilon naught is permittivity of air or vacuum. What is D? D is the separation between the plates. It means जो दो plates हैं वो कितने gap पे रखी हुई हैं, that is called D, separation between the plates. तो capacitance D के inversely proportional है. It means if the distance between the plates is large, capacitance will be less. Capacitance will be less. और area अगर ज्यादा होगा, area का directly है, area अगर ज्यादा होगा तो capacitance will also be large. Capacitance ज्यादा होगा और अगर D ज्यादा होगा तो capacitance कम होगा. This was the concept of capacitance of parallel plate capacitor when there is air in between them. If you have any doubt, please let me know. बेटा रिपीट ही तो किया अभी सारा ये. अगर बीच में एयर या वैक्यूम है तो आ रहा है A epsilon naught upon D. Then what is next? If there is any another medium between plates, if there is any another medium between plates, अगर plates के बीच में air या vacuum के अलावा, if there any another medium except air or vacuum, then what will happen? The capacitance will be A epsilon upon D. What it will be now? A epsilon upon, epsilon not नहीं आएगा, epsilon आएगा. So what it will be? A epsilon upon D. If you are clear with this, epsilon naught is permittivity of the air or vacuum. Epsilon is permittivity of the medium. Only epsilon is permittivity of a medium. Next, what we have the formula for dielectric constant or relative permittivity. Dielectric constant or relative permittivity. As we know, K is dielectric constant, that is epsilon upon epsilon naught. Epsilon upon epsilon naught. This is the ratio for permittivity of the medium to the permittivity of free space. The ratio is called dielectric constant. And what about this? If you want to calculate the value of epsilon from here, it will be K epsilon naught. The value of epsilon from here, it will be K epsilon naught. What is K? That is dielectric constant. What is epsilon naught? Permittivity of free space or vacuum. Next,
If we are going to put the value of epsilon over here, अगर हम epsilon की वैल्यू यहां पुट कर दें, then what will happen? Equals a, epsilon की वैल्यू क्या पुट करोगे? K epsilon naught upon d. So we are discussing putting the value of epsilon. After putting the value of epsilon, it becomes K epsilon naught. What it becomes, that is K epsilon naught upon d. अगर हम K को ले आए बाहर, K को इसमें बाहर ले आए, then what it will be? That is K A epsilon naught upon d. So this was the capacitance of parallel plate capacitor in air or vacuum. So look at here, C, it becomes K A epsilon naught upon d. So what is A epsilon naught upon d? A epsilon naught upon d is the capacitance of parallel plate capacitor with air in between. अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम हो तो उनका जो कैपेसिटेंस होगा that was A epsilon naught by d. It means अगर हम एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम डाल दें तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? न्यू कैपेसिटेंस विल बी के सी नॉट. जितना एयर या वैक्यूम के साथ में कैपेसिटेंस था उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा. मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, दोनों प्लेट्स के बीच में आपने जो मीडियम डाला उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है. तो व्हाट इट मींस 81 टाइम्स हो जाएगा जितना एयर का कैपेसिटेंस था. एयर अगर आप बीच में रखते हो उस टाइम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस था? उसे 81 टाइम्स हो जाएगा अगर आप ऐसा मीडियम रखते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है. तो जितना टाइम्स कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना टाइम ही जो है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है. तो किसी भी मीडियम को डालने पर, हमेशा जो डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस. कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस. कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है. ओके, सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air in between the plates. Now what we are doing, effect of dielectric on capacitance. अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें या उसकी जगह अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दें, अगर हम कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें या एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या डिफरेंस आएगा? This is the topic. So this is an important topic. So look over here. So what is the topic? Topic is effect of a dielectric slab effect of dielectric slab introduced in between plates of capacitor. अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हो तो क्या उसके ऊपर फर्क आता है? वैसे तो हमने कर लिया अभी, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि कैसे फर्क आएगा. अभी तक तो हमने थिकनेस नहीं बताई थी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी है, कितनी थिकनेस की स्लैब आपने इंट्रोड्यूस उसमें की है. तो अब हमारे पास आएगा कि कितनी थिकनेस की स्लैब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस? दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. या तो मेरे से टेढ़ी बनती है या फिर मोबाइल टेढ़ा. चलो, जो भी प्लेट कैपेसिटर है. इसके बाद अब हमने क्या किया, इनके बीच का जो गैप है दैट इज डी. द गैप बिटवीन द टू प्लेट दैट इज डी. दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो डी. चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव. और दूसरे के ऊपर चार्ज दैट इज नेगेटिव. इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज दोनों के ऊपर है, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव.
दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता ही है कितना होगा, दैट इज ई नॉट कितना है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एयर वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस कितना होगा, देखो सी नॉट, कैपेसिटेंस पहले होगा इसमें डायरेक्ट स्लैब डालने से पहले, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हमने कर लिया, अभी पीछे डेरिवेशन की है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिना डाले मतलब एयर या वैक्यूम है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, दैट इज ए एप्सिलॉन अपॉन डी। व्हाट इज इट, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। ये मैंने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड कर दी, इसकी जो थिकनेस है दैट इज टी। ओके, नाउ introduce a dielectric slab of thickness T is less than D। जो थिकनेस है दैट इज लेस देन डी, मतलब डी प्लेट्स के बीच का जो गैप है उससे कम है। इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज लेस देन डी इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आपने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंट्रोड्यूस्ड कर दी। उससे फर्क क्या पड़ेगा, एक चीज, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट जब समझाया था, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते ही, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा इधर, और वो नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा इधर। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे बन रहा है दैट इज ईपी, प्रोड्यूस होता है, ये ईपी बोलते हैं। तो जैसे ही आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखी, यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, दैट इज ईपी। ओके, बाहर जो खाली जगह है वहां पे कितना लग रहा है, दैट इज ई नॉट, वो तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह पे लग रहा है, दैट इज डी माइनस टी। टोटल डी था, टी ये गया, टी में अब ईपी लग रहा है, तो बाकी जगह क्या बची, बाकी जगह क्या बचेगी, टोटल डी में से टी जो है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। टी जैसे ही आपने माइनस किया मतलब जो बाकी जगह बची वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही लगा ना, अप्लाइड है, वो खाली जगह अभी एयर या वैक्यूम है उसमें, तो इट मींस यहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं। ई नॉट लग रहा है डी माइनस टी में, ई नॉट किस में लग रहा है, डी माइनस टी में, और ईपी किस में लग रहा है, ईपी लग रहा है टी में। सो वी हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स नाउ। सो पोटेंशियल क्या होगा नाउ, ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड भी बोल सकते हो आप, प्रोड्यूस्ड इन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब opposite to electric field, applied electric field, opposite to applied electric field, opposite to applied electric field, applied electric field से opposite है। applied electric field कितना था, E नॉट इस डायरेक्शन में था, पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो प्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस हुआ है वो EP वो स्लैब के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। ओके, नाउ वी हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल होता है, सो पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है अगर मैं आपको बताऊं V इज इक्वल टू ED होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल्स ED। व्हाट इज इट, दैट इज V इक्वल्स ED। व्हाट इज V, दैट इज पोटेंशियल। व्हाट इज E, E is electric field। What is E, that is electric field, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हमने क्या किया, E नोट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी जगह पे लग रहा है, वो लग रहा है D माइनस टी में, स्लैब को छोड़ के जो बाकी जगह उसमें एयर है ना, एयर वाले में E नोट लग रहा है, तो E नोट लग रहा है दैट इज D माइनस टी। E नोट इलेक्ट्रिक ओके,
सो व्हाट इज नेक्स्ट, प्लस ईपी कितने में लग रहा है, ईपी लग रहा है टी में, ईपी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस में लग रहा है, टी में। तो हमने क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस लेना था, जितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने ई नॉट, कितने में लग रहा है वो डी माइनस टी में, तो उसको डी माइनस टी लिख दिया। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी था, वो कितने में लग रहा है, दैट इज टी। तो व्हाट इज इट नाउ, दैट इज ई नॉट डी माइनस टी। व्हाट इज इट, दैट इज ई नॉट डी माइनस टी। वो तो ई नॉट लग गया डी माइनस टी में। नेक्स्ट ये वाला पूछ रहे हो, यहां पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, स्लैब जो बाहर इफेक्ट नहीं करती, स्लैब है ना डायरेक्ट्रिक स्लैब, वो अपने बाहर इफेक्ट नहीं करती कभी, और यहाँ एयर या वैक्यूम है और उसकी परमिटिविटी वैसे ही कम होती है, तो स्लैब के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा बेटा उसका। अच्छा, अब ई नॉट डी माइनस टी दैट इज ई पी इंटू टी। अब वैल्यू आपने पुट करनी है, इसके लिए हमारे पास जो एक फॉर्मूला है उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने किया पीछे अभी, वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता था। अगर आपको ध्यान हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, मैंने कॉन्सेप्ट जब करवाया था, दो तीन चीजों से हम निकाल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने का ये भी तरीका होता है। अच्छा, अगर यहां पे अगर मैं ये चीज बात करूं, अंदर जो ईपी लगा, अंदर ई नोट भी लगेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट लग रहा है, प्रोड्यूस्ड हुआ ईपी, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, नेट निकाल लेते हैं, क्योंकि एक तो राइट साइड में लग रहा है, एक लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो नेट दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे ना दूसरे के, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस होगा। बाद में क्या कर दिया गया, ई नोट माइनस ईपी को ई लिख दिया गया, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें लग रहा है वो कितना लग रहा है, ई। तो अब टी में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, नहीं तो हमें एक स्टेप और फालतू करना पड़ता है, यही कर देते हैं हम। क्या हम इसमें लिख देंगे, एक स्टेप लिख देना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब। इनसाइड स्लैब का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, दैट इज ई नॉट अप्लाइड राइट साइड में वो ज्यादा है, ईपी जो कम है इसको हम ई बोलेंगे, क्या बोल देंगे उसको, ई। जो नेट बचा अप्लाइड ई नॉट है, अपोजिट वाला ई पी है जो बना है, उन दोनों को माइनस करके जो नेट बचा दैट इज ई। तो नेट वाला यहां ले लेते हैं, हमें एक स्टेप और फालतू नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक सेंटेंस ही लिखना पड़ा, ये तो दो तीन स्टेप हमें फालतू करने पड़ेंगे। तो यहाँ ई इंटू टी कर देना। अब जो हमारे पास आता है वो क्या है, देखिए, एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना के, क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जो होता है के, दैट इज ई नॉट बाय ई। व्हाट इज ई नॉट, दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। What is E naught? That is applied electric field. And what is E? E is called reduced value of electric field. या net electric field भी inside the slab, या इसको बोलते हो reduced value of electric field. What is it? That is reduced value of electrical field. ये reduced value है electric field की. Okay. So reduced value को यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, that is applied electric field upon reduced value of electric field. Applied electric field divided by reduced electrical field. आप इसमें से reduced value of electric field निकाल लो, E इधर मैं ले आया तो it becomes E naught by K. E की वैल्यू क्या आ गई, that is K इधर ले आए, E naught by में K. Put in this equation. Put in equation 1. Put in equation 1. तो V इक्वल्स क्या आ गया, दैट इज E नॉट इंटू डी माइनस टी, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ क्या है, प्लस E की जगह क्या लिख दिया हमने, E नॉट बाई के इंटू टी। E की जगह क्या लिख दिया, E नॉट बाई के इंटू टी। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। चलो पोटेंशियल तो आ गया, अब हमने निकालना क्या होता है, हमने तो निकालना होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या, एज कैपेसिटेंस क्या होता है, दैट इज Q बाई V। तो Q ये रहा, V ये रख दो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा E नॉट, बचा क्या, D माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो E नॉट तो दोनों में कॉमन आ गया, इधर से क्या बचेगा, D माइनस टी, उधर क्या बचा, T बाई में K, तो E नॉट बाहर D माइनस टी प्लस टी बाई के। कैपेसिटेंस, सो कैपेसिटेंस अब क्या बन जाएगा, Q एज इट इज ऊपर है, E नॉट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज E नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में कितना होता था, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। नेक्स्ट सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है क्यू बाई, यहां लिख दे रहा हूं मैं, क्यू बाई ए। सिग्मा सरफेस डेंसिटी होती है एंड सरफेस डेंसिटी इज क्यू बाई में ए।
तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट बन गया। ए एप्सिलॉन नॉट ले जाओ ऊपर क्योंकि डिवाइड के डिवाइड में था, Q से Q कैंसिल, सो कैपेसिटेंस कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय में के। ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गया जब आप क्या इंट्रोड्यूस करते हो इसमें, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। जब आप इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप इंट्रोड्यूस करो तो ये आपके पास बनेगा। ओके, अब आप इसमें क्या करो, ये तो टी कॉमन निकालो दूसरे में, इसमें स्पेशल केसेस भी बनते हैं। अगर इसमें टी कॉमन निकालो दोनों में तो क्या बनेगा, C इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट, डी बाहर है, माइनस टी कॉमन आ गया दोनों में, माइनस टी, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई के। इन ये लास्ट वाली दोनों टर्म में से मैंने माइनस टी कॉमन निकाली, यहां 1 बचा, वहां प्लस वाला माइनस हो गया, 1 बाई के। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब आपने उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर दी, जब आप उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हो तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। इसमें स्पेशल केस अब क्या बनेगा, अगर आप स्लैब इतनी थिकनेस की पुट करते हो, इफ T इज इक्वल टू डी, जितना स्लैब के बीच का मतलब प्लेट्स के बीच का गैप है उतनी थिकनेस है स्लैब की, तो T इज इक्वल टू डी अगर आप पुट करते हो, इस इक्वेशन में पुट कर दो T इज इक्वल टू डी, तो D माइनस टी यहां पे क्या हो जाएगा, C ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, टी की जगह डी आ जाएगा, प्लस डी बाई के, टी की जगह डी पुट करना है, कहने का मतलब ये डी से डी तो कैंसिल हो गया, क्या बचा ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और के डिवाइड में था, के ऊपर आ गया। ये क्या था, ये एयर वाला कैपेसिटेंस था, तो सी नॉट के, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई होके, अगर आप फुल स्लैब जितना उनके बीच में गैप है उतनी थिकनेस की स्लैब उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो आपका पूरा का पूरा कैपेसिटेंस जो है, जब एयर के साथ में जितना कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, उसका के टाइम्स हो जाएगा, मतलब जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना ही टाइम्स हो जाएगा। सिग्मा वाले से समझो, सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा है यहाँ पे क्या था, क्यू बाई वी, वी हमने यहाँ पुट किया था नीचे, ठीक है, बी की वैल्यू पुट करके ई नोट दोनों में कॉमन आ गया था। ई नोट क्या होता था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ई नोट क्या होता था, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख दिया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू नीचे ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, क्यू से क्यू कैंसिल, यहां से आगे की है। दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे।